علی امین گنڈاپور کا استعفی گورنر کو موصول، گورنر خیبر پختونخوا نے تصدیق کر دی، کہا جب تک استعفی منظور نہیں ہوتا وزیر اعلیٰ اپنے عہدے پر رہیں گے، پیر کو استعفے پر مشاورت ہوگی۔ صوبائی وزیر قانون آفتاب عالم نے کہا کہ آئین کے مطابق گورنر کی جانب سے استعفی قبول کرنا کوئی معنی نہیں رکھتا، وزیر اعلیٰ نے استعفی دے دیا ہے اور قانون کی نظر میں یہ قبول سمجھا جاتا ہے۔ اسپیکر اسمبلی کو آگے بڑھنے کا کہہ دیا ہے، زیادہ سے زیادہ ایک دن گورنر کی منظوری کا انتظار کریں گے۔ علی امین کے ہاتھ سے لکھے استعفے میں کہا گیا وہ تصدیق کرتے ہیں کہ انہوں نے بطور وزیر اعلیٰ استعفی دے دیا ہے۔ اس سے پہلے وزیر اعلیٰ کا ٹائپ شدہ استعفی سامنے آیا تھا، لیکن گورنر کا موقف تھا کہ انہیں استعفی موصول نہیں ہوا۔ تحریک انصاف کے سیکرٹری جنرل سلمان اکرم راجہ نے کہا کہ وزیر اعلیٰ گورنر کے ماتحت نہیں کہ گورنر استعفے کی منظوری دیں۔ پیر کے روز سہیل آفریدی کو نیا قائد ایوان منتخب کر لیا جائے گا۔ وفاقی وزیر اطلاعات عطا نے کہا ہے کہ پی ٹی آئی کا سربراہ جیل میں بیٹھ کر دہشت گردوں کو آج بھی سپورٹ کرتا ہے۔ جیل میں بیٹھے شخص کی خواہش ہے کہ لاشوں پر سیاست چمکائی جائے۔ تحریک انتشار سمجھتی ہے کہ دہشت گردوں کا ساتھ دینے میں ہی عافیت ہے۔ تاثر ہے کہ کل عدم ٹی ٹی پی تحریک انصاف کا عسکری ونگ بن چکی ہے۔ فیصلہ کریں کہ آپ دہشت گردوں کے ساتھ ہیں یا ان کے خلاف۔ میڈیا سے گفتگو میں عطا نے کہا کہ بانی پی ٹی آئی اور ان کی جماعت عالمی سطح پر دہشت گردوں کے سہولت کار رہے ہیں۔ اس جماعت نے سوچے سمجھے منصوبے کے تحت دہشت گردوں کو لا کر بسایا۔ ریاست فیصلہ کر چکی ہے کہ دہشت گردوں کو شکست دیں گے۔ عطا نے یہ بھی کہا کہ خیبر پختونخوا کی کابینہ میں ٹمبر مافیا اور ڈرگ مافیا بیٹھا ہے۔ دہشت گردی کا الزام ایک جماعت اور ایک فیصلے کو نہیں دیا جا سکتا، تحریک انصاف کے سلمان اکرم راجہ کا جواب۔ پشاور میں میڈیا کانفرنس میں کہا کہ ہم جانتے ہیں دہشت گردی ایک دن کی پیداوار نہیں، گزشتہ روز جو الزامات لگائے گئے ان کی کوئی بنیاد نہیں۔ کیا ہم نے دہشت گرد صوبے میں گھسائے؟ اپنے شہداء کے ساتھ کھڑے ہیں۔ سلمان اکرم راجہ نے یہ بھی کہا کہ تبدیلی کا مقصد ایک نئی شروعات ہے، صوبے میں گورننس کو بہتر کرنا ہے۔ آج کہا جا رہا ہے کہ گورنر راج لگایا جائے گا، آپ آئین و قانون کو توڑتے ہیں، ہمیں این ایف سی ایوارڈ کی رقم تک نہیں ملی۔ جتنے مرضی وزرائے اعلیٰ بدلیں، دہشت گردی کے خلاف آپریشن نہیں روکے گا۔ وزیر مملکت طلال چودھری کا نام لیے بغیر تحریک انصاف پر وار۔ فیصل آباد میں میڈیا سے گفتگو کے دوران کہتے ہیں حکومت اسٹیبلشمنٹ کے کہنے پر چلتی ہے، یہ کیوں نہیں کہا جاتا اسٹیبلشمنٹ حکومت کو سپورٹ کرتی ہے؟ ریاست فیصلہ کر چکی، اب کسی سے بلیک میل نہیں ہوگے۔ ریاست کے خلاف ملک میں کہیں بھی سیاست کی اجازت نہیں ہوگی۔ ڈیرہ اسماعیل خان میں پولیس ٹریننگ سکول پر بھارتی حمایت یافتہ فتنہ الخوارج کے دہشت گردوں کا حملہ۔ آئی ایس پی آر کے مطابق 10 اور 11 اکتوبر کی درمیانی شب کیے گئے حملے میں دہشت گردوں نے بارود سے بھری گاڑی سکول کے مرکزی دروازے سے ٹکرا دی۔ پولیس اہلکاروں نے 3 بھارتی حمایت یافتہ خوارج کو ہلاک کر دیا۔ 2 دہشت گردوں کو سیکیورٹی فورسز نے ٹارگیٹڈ کارروائی کے دوران انجام تک پہنچایا۔ شدید فائرنگ کے تبادلے میں 6 بہادر پولیس اہلکار شہید ہوئے، 12 پولیس اہلکار اور 1 شہری زخمی ہوا۔ دہشت گردوں نے اسکول کمپلیکس کی مسجد پر بھی حملہ کیا، عبادت گاہ کی بے حرمتی کی اور امام مسجد کو شہید کر دیا۔ صدر مملکت آصف علی زرداری اور وزیر اعظم شہباز شریف، وزیر داخلہ محسن نقوی اور گورنر کے پی فیصل کریم کنڈی کی دہشت گرد حملے کی مذمت، شہداء کو خراج عقیدت۔ ڈیرہ اسماعیل خان میں دہشت گرد حملے میں شہید ہونے والوں کی نماز جنازہ پولیس لائن میں ادا کر دی گئی۔ نماز جنازہ میں مستعفی وزیر اعلیٰ علی امین گنڈاپور، آئی جی، چیف سیکرٹری، عسکری اور پولیس افسران کے ساتھ ساتھ شہریوں نے شرکت کی۔ پولیس اور سیکیورٹی فورسز نے آپریشن رات گئے مکمل کیا۔ ڈی جی پبلک ریلیشنز کے مطابق حملے کے وقت ٹریننگ سکول میں موجود پولیس کے 200 جوانوں اور زیر تربیت اہلکاروں کو ریسکیو کیا گیا۔ ٹریننگ سکول اور ناظرہ آفس کو کلیئر کیا گیا۔ ڈیرہ اسماعیل خان کے جنرل آفیسر کمانڈنگ کی آئی جی پولیس اور چیف سیکرٹری سے گفتگو، کہا قربانیوں پر فخر ہے، دہشت گردوں کو بہت بڑا نقصان پہنچایا ہے۔ سیکیورٹی فورسز اور پولیس نے یکجا ہو کر کام کیا جو قابل تعریف ہے۔ وزیر دفاع خواجہ آصف نے کہا ہے افغانستان سے تعلقات بگاڑ کی طرف جا رہے ہیں۔ افغانستان پاکستان میں دہشت گردی ایکسپورٹ کر رہا ہے۔ پاکستان کے جن علاقوں میں دہشت گرد پناہ لیتے ہیں، مکینوں کو علم ہوتا ہے اگر ان علاقوں کے لوگ خاموش رہیں گے تو یہ نیم رضامندی ثابت ہوگی۔ سیالکوٹ میں جیو نیوز سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ بھارت کے بیانات اس بات کی شہادت ہیں کہ وہ دوبارہ کوئی ایڈونچر کرے گا اسے پہلے سے زیادہ منہ توڑ جواب دیا جائے گا۔ مذہبی جماعت کے احتجاج کی وجہ سے اسلام آباد اور راولپنڈی میں راستے بند، سڑکوں پر ایمبولینسز پھنس گئیں، مریضوں کے گھر والے راستہ مانگتے رہے، ایک بچے کی والدہ رو رو کر دہائی دیتی رہی لیکن اسپتالوں تک رسائی ناممکن ہو گئی۔ حالات
खराब होने पर एक और ज़ईफ मरीज को एम्बुलेंस में ही ड्रिप लगाई गई। कंटेनर खड़े होने से मोटरसाइकिलों के गुजरने के रास्ते भी बंद। शहरियों और पुलिस एहलकारों में तलकलामी। मेट्रो बस सर्विस और लोकल ट्रांसपोर्ट बंद होने से रेलवे स्टेशन पर मुसाफिरों का रश बढ़ गया। एहतजाज की वजह से मार्केटें भी बंद रहीं। एक्सप्रेसवे, फैजाबाद और आईजीपी रोड भी मुकम्मल तौर पर बंद। रावलपिंडी और इस्लामाबाद को मिलाने वाला फैजाबाद इंटरचेंज भी सील है। एयरपोर्ट जाने वाले रास्तों को भी कंटेनर लगाकर सील कर दिया गया। रावलपिंडी इस्लामाबाद में इंटरनेट सर्विस दूसरे रोज भी मुअत्तल। तालीमी इदारे भी बंद। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि हुकूमत आईटी और मसनूई ज़हानत को फ़रोग़ देने के लिए तरजीही बुनियादों पर काम कर रही है। मसनूई ज़हानत को मुल्की मईशत की तरक्की के लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं। मसनूई ज़हानत से मुतालिक इजलास में कहा कि डिजिटल मईशत के निफाज को मसनूई ज़हानत के जरिए मज़ीद मौसर बनाया जाएगा। मसनूई ज़हानत से मुतालिक कौमी पॉलिसी का निफाज मौसर तौर पर किया जाएगा। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का कहना है पाकिस्तान और सऊदी अरब के बरादराना ताल्लुकात पूरी मुस्लिम दुनिया के लिए मिसाली हैं। सऊदी अरब और पाकिस्तान के दिफाई मुआहदे को पूरी कौम ने सराहा। लाहौर में सऊदी पाकिस्तान बिजनेस काउंसिल के खुसूसी वक्त के एजाज में तकरीब से खिताब के दौरान वज़ीर आला पंजाब ने सऊदी वक्त को अरबी में खुशामदीद कहा। उनका कहना था पंजाब में सरमायाकारी के बहुत मौके मौजूद हैं। पंजाब की खुशहाली और तरक्की में सऊदी सरमायाकारों का हाथ होगा। प्रिंस मंसूर बिन मोहम्मद बिन साद आल सऊद ने खिताब में कहा पंजाब में सरमायाकारी के लिए पुरअज़्म हैं। पंजाब की ज़मीनें ज़रख़ेज़ हैं। यहाँ सरमायाकारी के बहुत मौके मौजूद हैं। सऊदी सरमायाकारों को बहुत पहले पाकिस्तान आना चाहिए था। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब IMF और वर्ल्ड बैंक के सालाना इजलासों में शिरकत के लिए अमरीका रवाना। वज़ीर ख़ज़ाना वर्ल्ड बैंक और IMF के इजलासों में पाकिस्तान की नुमाइंदगी करेंगे। IMF की मैनेजिंग डायरेक्टर क्रिस्टलिना जॉर्जीवा, आलमी बैंक के सदर अजय बंगा, व्हाइट हाउस के हुकाम और कांग्रेस की फाइनेंशियल सर्विसेज कमेटी के चेयरमैन से मुलाकातें भी करेंगे। FBR की डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन के हवाले से आलमी बैंक के ज़ेर एहतमाम इलाकाई राउंड टेबल में शिरकत करेंगे। वज़ीर ख़ज़ाना चीन, बरतानिया, सऊदी अरब, तुर्की और आज़रबाईजान के हम मनसब से भी मुलाकातें करेंगे। अमरीका के सदर ने चीन पर 100% टैरिफ लगाने का ऐलान कर दिया। कहा कि चीन से दरामदात पर 100% टैरिफ नवंबर या उससे भी पहले नाफिज किया जाएगा। ट्रंप ने कहा कि उनकी चीनी सदर शी जिनपिंग से मुलाकात मंसूख नहीं हुई, ताहम वो मशरिक़ वुस्ता के दौरे के दौरान मिस्र जाएंगे और इसराइली पार्लियामेंट से खिताब भी करेंगे। यरगमालियों की वापसी 20 से शुरू होगी। कहा पाकिस्तान और भारत समेत 8 जंगें रुकवाईं। पाक भारत जंग में 7 तैयारे गिराए गए। दोनों जौहरी ताकतों को खबरदार किया था कि अगर जंग की तो उन पर भारी टैरिफ आयद करेंगे। उधर अमरीका और चीन के दरमियान तिजारती कशीदगी के बायस क्रिप्टो मार्केट को तारीख की सबसे बड़ी एक रोजा मंदी का सामना करना पड़ा। सरमायाकारों को तकरीबन 9.55 अरब डॉलर का नुकसान हुआ। गजा जंगबंदी मुआहिदा नाफिज होने के बाद हजारों फलस्तीनी घरों को लौटने लगे। मलबे तले दबी इंसानी बाक़ियात की तलाश का अमल भी शुरू कर दिया। कल से अब तक 155 लाशें निकाली जा चुकी हैं। इसराइली फौज ने मुआहिदे के तहत नई हुदूद पर पोजीशन संभालना शुरू कर दी। मशरिक़ वुस्ता के लिए अमरीका के नुमाइंदा खुसूसी स्टीव विटकॉफ का कहना है कि इसराइली फौज के इनखला का पहला मरहला मुकम्मल हो चुका है। हमास का कहना है कि गजा की गवर्नेंस खालिस्तान फलस्तीन का दाखिली मामला है, किसी गैर मुल्की सरपरस्ती को कबूल नहीं किया जाएगा। गजा में जंगबंदी के बाद दुनिया भर में फलस्तीनियों से इज़हार यकजहती के लिए जश्न। बरतानिया के दारुल हुकूमत लंदन में हजारों अफराद की रैली। स्वीडन में भी बड़ी तादाद में शहरी निकले, ढोल बजाकर गजा जंगबंदी का खैर मकदम किया। उर्दन, मराकश और ब्रसल्स में भी जश्न, आतिशबाजी और मिठाइयाँ तकसीम की गईं। गजा की रिहायशी बच्ची ने अपनी पालतू बिल्ली के साथ खुशी मनाई। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने जंगबंदी की खुशी में फलस्तीनियों की जानिब से मिठाई बांटने की वीडियो शेयर कर दी। लिखा, जंगबंदी के बाद GT रोड पर फलस्तीनियों से मोहब्बत के नाम पर जुलूस निकालना और इस्लामाबाद पर चढ़ाई करना ज्यादती है। फलस्तीनी मिठाई खा रहे हैं, हम किस बात का एहतजाज कर रहे हैं? 2 साल गजा के वासियों पर जुल्म के पहाड़ टूटते रहे, बच्चों का कत्लेआम हुआ, सारी दुनिया के लोग सरापा एहतजाज थे। मुजाहिरीन में अक्सरियत गैर मुस्लिमों की थी। पाकिस्तान में फलस्तीन पर जान कुर्बान करने के बाद ख्वाहिशमंद शायद लाइल्म रहे। अब जबकि इसराइल और हमास ने जंगबंदी मुआहिदा साइन कर लिया, जंग बंद हो गई, तो GT रोड पर फलस्तीनियों से मोहब्बत के नाम पर जुलूस निकल रहे हैं। एहतजाज करने वालों को बताया जाए कि लड़ाई खत्म की गई है।
वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारर से अमरीकी नाज़िमुल उमूर नेटली बेकर की मुलाकात। अमरीकी नाज़िमुल उमूर ने दहशतगर्दी के खिलाफ पाकिस्तान के सफ़े अव्वल के किरदार को सराहा। अता तारर ने कहा, दहशतगर्दी के खिलाफ पाकिस्तान की कुर्बानियाँ दुनिया के अमन के लिए हैं। हुकूमत ने फेक न्यूज़ के खात्मे और डिजिटलाइजेशन के फ़रोग़ के लिए जामे पॉलिसी मुतारिफ कराई है। सहाफ़ियों की फलाह बहबूद के लिए भी कानून साज़ी की जा रही है। अमरीकी नाज़िमुल उमूर ने पाकिस्तान की जानिब से सहाफ़ियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इक़दामात को सराहा। जनूबी अफ्रीका के खिलाफ टेस्ट स्क्वाड में शामिल ऑफ स्पिनर साजिद खान ने फिटनेस टेस्ट पास कर लिया। कल से शुरू होने वाले टेस्ट में प्लेइंग 11 का हिस्सा होंगे। साजिद खान ने पाकिस्तान क्रिकेट टीम के प्रैक्टिस सेशन में बॉलिंग की थी, मगर बुखार में मुब्तला होने की वजह से मुकम्मल फिट न थे। टेस्ट सीरीज की ट्रॉफी की रोनुमाई भी कर दी गई। जनूबी अफ्रीका के कप्तान एडन मार्करम NCA म्यूजियम गए। कप्तान शान मसूद ने जनूबी अफ्रीकी कप्तान को म्यूजियम में मौजूद ट्रॉफीज के बारे में बताया। पाकिस्तान टेस्ट टीम के कप्तान शान मसूद का कहना है, टेस्ट मैच जीतने के लिए 20 विकेट लेना जरूरी है। मुर्दा विकेट बनाकर दोनों टीमें 600 रन करें तो होम टीम को फायदा नहीं होगा। साजिद खान वायरल इन्फेक्शन से सेहतयाब हुए हैं। फाइनल 11 में उन्हें शामिल करने के लिए अभी वक्त है। साजिद खान टीम के मेन बॉलर हैं। जनूबी अफ्रीका ICC टेस्ट चैंपियनशिप के विनर है। नए सीजन का आगाज उन्हीं से खेल कर रहे हैं। जनूबी अफ्रीकी टीम के कप्तान एडन मार्करम का कहना है कि उनकी टीम का फोकस स्पेन को खेलना है। बाबर आजम की विकेट हमेशा सबसे अहम होती है। पंजाब की सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब का कहना है कि पाकिस्तान में दहशतगर्दी की वापसी का जिम्मेदार इमरान खान है। एक बयान में उन्होंने कहा कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मुल्क से दहशतगर्दी खत्म की, मुतफ़िका नेशनल एक्शन प्लान दिया और पूरी कौम को दहशतगर्दी के खिलाफ एक बयानिए पर जमा किया, जबकि इमरान खान ने दहशतगर्दों की सहूलतकारी की और नेशनल एक्शन प्लान की खिलाफ वर्जी की। खैबर पख्तूनख्वा की लम्हा बलम्हा बदलती सियासी सूरत हाल के पेश नज़र वफाकी वज़ीर अमीर मुकाम गैर मुल्की सरकारी दौरा मुख्तसर करके वतन वापस पहुँच गए। वो आज गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी और दीगर सियासी जमातों के कायदीन से मिलकर सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल करेंगे। अमीर मुकाम का कहना है कि उनका मकसद अपोजिशन को यकजा रखना है। सेनेट इलेक्शन में भी अपोजिशन जमातों ने मिलकर हिकमत अमली बनाई और कामयाबी हासिल की थी। दूसरी जानिब स्पीकर KP असेंबली बाबर सलीम सुआती से अपोजिशन लीडर इबादुल्ला ने मुलाकात की। सूबे के मौजूदा मामलात पर तबादला ख्याल किया गया। वफाकी वज़ीर तालीम डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी का कहना है कि हुकूमत में होते हुए भी यूं महसूस होता है कि जैसे अपोजिशन में है। मुल्क में मुआशी बहरान नहीं बल्कि नीयतों का बहरान है, जिसके होते मुआशी बहरान दूर नहीं हो सकता। ऐवानों में किसानों की नुमाइंदगी जागीरदार कर रहा है। तब्दीली लानी है तो ऐवान में लाई जाए। कराची में निजी यूनिवर्सिटी की तकरीब से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि मेडिकल यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाली ज्यादातर लड़कियां घर बैठ जाएंगी, रियासत इनको डिग्री देगी और घर वाले उन्हें बेलन थमा देंगे। कराची के इलाके जिला बस्ती की मुतादिद सड़कें खराब। जहांगीर रोड से 3 हटिए जाने और आने वाली सड़कें तबाहाली का शिकार। जहांगीर रोड पर 2 तरफ बड़े बड़े गड्ढे पड़ गए। अब तक सड़कों की तामीर और मुरम्मत के काम का आगाज नहीं किया जा सका। सड़कों की खराब सूरत हाल के बायस मुतादिद ड्राइवर रॉन्ग वे का इस्तेमाल करने लगे। ट्रैफिक सही सम पर चलवाने के लिए ट्रैफिक पुलिस एहलकार भी तैनात नहीं है। जहांगीर रोड की मुरम्मत या तामीर 1 दिहाई के दौरान 4 से ज़ायद बार की जा चुकी है। मुल्तान के सैलाब से मुतासरा इलाकों में पानी तो उतर गया, लेकिन तबाही के मनाजिर मौजूद हैं। मुतासरा इलाके शेरशाह के सैलाब मुतासरीन अपने बच्चों के साथ खुले आसमान तले जिंदगी गुजारने पर मजबूर। कहते हैं सर्दियों की आमद है, उनके पास ना सर छुपाने की जगह है, ना खाने को कुछ है। हुकूमत मदद करे। लाहौर में बालाज ट्रकावाला कत्ल केस का मरकजी मुल्जिम ख्वाजा तारीफ गुलशन और तीफी बट मुबैना पुलिस मुकाबले में हलाक। ज़राए के मुताबिक मुबैना मुकाबला रहीम या खान के नवाही इलाके में हुआ, जब CCD एहलकार मुल्जिम को तफ्तीश के लिए ले जा रहे थे। मुल्जिम तीफी बट को कुछ रोज कबल दुबई से लाहौर मुंतकिल किया गया था। तीफी बट पर कत्ल के मुतादिद इल्जामात थे।